Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I am your mentor Yogita Dhami. So here we are to enhance our learning with the NCERT solutions of chapter 5 for class 6 science. इस chapter का one shot already upload हो चुका है. If you have not seen, go and check it out. Link is given in the description. ठीक है? There we have covered this chapter in simplest way possible. Yes. And before we proceed for this video, let me tell you one good news. After the completion of first term syllabus, we will be covering the important questions from each and every chapter. So don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for important notifications. ठीक है? So let's get started. Here we go with the first question. Some length are given in column 1 of table 5.5. This is the table 5.5 of your NCERT. Some units are given in column 2nd. Column 1, column 2nd, this is the one. यहाँ पर कुछ distance दी हुई है, यहाँ पर कुछ units हैं. You have to simply match them. है ना? Distance between Delhi and Lucknow. Distance between the cities. Obviously longest distance of kilometer. So where is kilometer? This one. This is the one. Next, thickness of coin. Thickness of coin. बेटा बहुत छोटी सी होती है. सबसे छोटी वाली यूनिट चाहिए यहाँ पर. क्या हो सकता है? मिलीमीटर. This is a millimeter. Next, length of eraser. बेटा length of eraser. Eraser को हम usually किस में मेजर कर सकते हैं? सेंटीमीटर में. Isn't it? So यहाँ पर सेंटीमीटर होगा आंसर. This is the one. And length of school ground. School ground को आप किलोमीटर तो मेजर करोगे नहीं, है ना? वहाँ पर चाहिए मीटर. So meter will be the answer. Easy है? No doubt. चलो next. Read the following statement and mark true or false against each. True and false है. The motion of a car moving on a straight road is an example of linear motion. Yes, true. बेटा जहाँ पर भी word ये straight आ गया तो वो उसका मतलब linear motion की ही बात हो रही है ना? So this is true. Next. Any object which is changing its position with respect to a reference point with time is said to be in motion. Yes, if change in position with respect to a reference point with time, तो then it is a motion. Otherwise वहाँ पर अगर change नहीं होगी position तो क्या होगा? Rest. है ना? So yes, this is true. Again, next. 1 kilometer is equals to 100 centimeter. No, false. False. क्या होगा यहाँ पर? 1000 meter. 1 kilometer को 1000 meter होता है. So this is false. यहाँ पे करेक्शन करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स स्टेट करने के लिए बोला है. सो दैट्स डन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. बेटा स्टैंडर्ड यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जहां पर भी मीटर मीटर वर्ड है वो सारे स्टैंडर्ड यूनिट हो जाते हैं. हैंड स्पैन जहां पर भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो जाए इसका मतलब वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है ना? सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल. Find out the smallest value that can be measured using each of these scales. Record your observation in the tabular form. बेटा अपने पास स्कूल में या फिर घर पे whatever measuring device you have seen, उनमें smallest value आपको यहाँ मेंशन करनी है और उसका नाम लिखना है ना? अब इसकी स्टार्ट अपने बैग से कर लो. आपके बैग में क्या होता है? 15 सेंटीमीटर का स्केल. यस, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मेजर कर सकते हो उससे आप? मिलीमीटर. सिंपल है ना? सो द फर्स्ट वन इज आपका 15 सेंटीमीटर स्केल. उसके अलावा किसी किसी बच्चों के पास 30 सेंटीमीटर स्केल भी तो होता है. सो 30 सेंटीमीटर वाला स्केल. सो वहाँ पर अगेन द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1 मिलीमीटर. ठीक है, देखो लिख लेते हैं इसको. सो फर्स्ट वन इज रूलर 15 सेंटीमीटर दैट यू आर हैविंग. उसमें क्या होगा? दैट इज 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है. 1 फीट स्केल अगेन उसमें भी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 मिलीमीटर ही होती है. सो these are the things which are available with you, है ना? इसके अलावा मेजरिंग टेप भी होता है. अगर घर पे अपनी मॉम से पूछोगे तो उनके पास पक्का एक मेजरिंग टेप होगा. कैसा दिखता है? इस तरह से रोल होता है उसका, है ना? फ्लेक्सिबल टेप भी बोलते हैं इसको. यहाँ पर भी द मिनिमम वैल्यू दैट यू कैन मेजर इज 1 मिलीमीटर. दिस डिफरेंस इज शोइंग 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 10 गैप्स हैं. सो 1 मिलीमीटर. ठीक है. सो अगेन 1 मिलीमीटर. नेक्स्ट वन इज वर्नियर कैलिपर. अब ये क्या चीज़ है बेटा? अगर आपके स्कूल में अवेलेबल होगा तो आपके टीचर ने पक्का आपको दिखाया होगा. समथिंग लाइक दिस. ये दिख रहा है ये डिवाइस. यहाँ इसको बीच में यहाँ पे कोई भी हम ऑब्जेक्ट रख के इसको मेजर कर सकते हैं. इट गिव्स अ वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट. अब यहाँ पे आप रीडिंग को जरा ध्यान से देखो. लिखा हुआ 29.50. सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 50, है ना? तो इस वाले वर्नियर कैलिपर के जो मिनिमम वैल्यू दैट इट कैन मेजर इज 0.01. लेकिन जो स्कूल में वर्नियर कैलिपर यूज होते हैं उनकी वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू दैट इट कैन मेजर इज 0.1, है ना? तो हम यहाँ पर 0.1 लिख लेंगे. 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर. ठीक है, देखने में ऐसा होता है. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट वन इज स्क्रू गॉज. अगेन इट इज अवेलेबल इन द फिजिक्स लैब. कैसा दिखता है? समथिंग लाइक दिस. दिस इज स्क्रू गॉज. ठीक है, यहाँ पर स्क्रू होता है, इसको हम टाइट करते हैं तो हम इसको फिर मिनिमम वैल्यू तक लेके जा सकते हैं. नाउ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इट कैन मेजर? लिखा हुआ है यहाँ पर. क्या लिखा हुआ है? 0.01 मिलीमीटर. यस, सो इट कैन मेजर
0.01 millimeter. Understood? So these are some of the devices that are available with you at your school or home. Got it? Next question. Suppose the distance between your school and home is 1.5 kilometer. Express it in meters. So basically conversion पूछा हुआ है ना? Easy है ये. Answer क्या होगा? What will be the answer? We know that 1 kilometer is equals to 1000 meter. So 1.5 kilometer is equals to क्या करेंगे बेटा? बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है. सो क्या करना है? 1.5 इंटू 1000 मीटर. सॉल्व इट. इट विल बी 15 1230 एंड 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर. सो दिस इज मीटर. 1500 मीटर इज द आंसर. नो प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट वन. Take a tumbler or a bottle, measure the length of the curved part of the base of the glass or bottle and record it. बेटा मेजरमेंट ऑफ द कर्व्ड पार्ट एनसीईआरटी में जब हमने वन शॉट कवर किया था, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. एनी फ्लेक्सिबल डिवाइस यू हैव टू टेक हियर. द बेस्ट थिंग इज थ्रेड, है ना. बट व्हेन यू विल राइट डाउन इट्स आंसर यू विल फाइंड इट विथ लेंदी अगर रटने जाओगे. सो लेट्स डू इट एंड देन राइट द आंसर. क्या करना है? टेक वन थ्रेड, टाई वन knot. This knot will act as a reference point. Put this knot anywhere on the curved part. Take a full round. Just release the thread and measure it with the help of any measuring device, any scale you can say. That's it. This is the answer. ठीक है? Have a look here. Take a thread, tie knot at one of the end. Mark a reference point, starting point on the bottle with the help of this thread. Take a complete round with the thread. Then straighten the thread and measure its length with the help of any measuring device. है ना? करके देख ले तो easy लगा ना आंसर. That's why. चलो next. Measure the height of your friend and express it in meter, centimeter and millimeter. अब बेटा ये बड़ा individual type question हो गया because आपका friend कौन है? What is the height of your friend? That depends. But here, just for example, I have taken height of Akshita in meter is 1.42 meter. ठीक है? हमने कोई गर्ल ले लिया अक्षिता, उसके हाइट कितनी है? 1.42 मीटर. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ठीक है? सो अगेन कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है. मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, सो बिगर टू स्मॉलर. सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, अगेन बिगर टू स्मॉलर. सो मल्टीप्लीकेशन ही होना है. सिंपल है. ठीक है? देखो हाइट ऑफ अक्षिता इन सेंटीमीटर. हाइट ऑफ अक्षिता इन सेंटीमीटर पहले तो मीटर में कितना था? 1.42 है ना. तो मीटर से सेंटीमीटर में कर रहे हैं. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 centimeter. This is the value, conversion value. Now 1.42 meter is equals to 1.42 into 100 centimeter. क्या करेंगे? कभी भी कंफ्यूजन हो पॉइंट को लास्ट में सॉल्व करेंगे. पहले बाकी चीज देखो. 142 और 20 इतना मिल गया. नाउ 2 डिजिट्स के बाद पहले पॉइंट है, सो 20 से पहले पॉइंट यहाँ पर. सो दिस इज योर आंसर 142 सेंटीमीटर. डन. नेक्स्ट हाइट ऑफ अक्षिता इन मिलीमीटर. नाउ मिलीमीटर. अब हमको सेंटीमीटर की वैल्यू मिल गई तो हम सेंटीमीटर से कर लेते हैं. वाई टू गो फॉर विद मिलीमीटर, है ना. सेंटीमीटर से कर लो. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. दिस इज द कन्वर्जन वैल्यू. सो 142 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 142 इंटू 10 मिलीमीटर. जस्ट मल्टीप्लाई 1420 millimeter. 1420 millimeter. This is the answer. Simple. Next question. You are given a coin. Estimate how many coins are required to be placed one after the other lengthwise without leaving any gap between them to cover the whole length of the chosen side of a notebook. Okay. ये क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने में ही 2 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना. देखो सिंपली क्या पूछा हुआ है. You have coin. You have to use multiple coins to cover the length of a notebook of any of the chosen side. You can take it a breadthwise also or lengthwise also. It's up to you. है ना. कोई भी एक साइड चूज कर लो. Now you have to find out that how many coins you will require basically. है ना. Verify your estimate by measuring the same side of the notebook and the size of the coin by using a 15 centimeter scale. ठीक है. करके देख लेते हैं. देखो. Let's say this is the notebook. एंड वी वॉन्ट टू मेजर इट्स लेंथ. अब कौन सी लेंथ? चूजन साइड है ना. तो हमने लेट्स से ये वाली साइड ले ली, है ना. दिस इज चूजन साइड. अब इसके पहले तो मेजरमेंट देख रहे थे कितना है. सो लेट्स मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल. सो 0 से लेके 12. सो 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द चोजन साइड ऑफ द नोटबुक. लिख लो इसको. लेंथ ऑफ चोजन साइड ऑफ नोटबुक इज 12 सेंटीमीटर.
मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या लेना है आपको, कॉइन, कॉइन को प्लेस करना है, राइट। सो कॉइन का मेजरमेंट पता होना चाहिए। सो कॉइन, लेट्स से दिस इज द 5 रुपीज कॉइन, इसका मेजरमेंट कितना निकला है 0 to 2, है ना। सो कॉइन का मेजरमेंट कितना है 2 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ कॉइन विल बी 2 सेंटीमीटर। अब बताओ कितने कॉइन हम यहाँ पे एडजेसेंट प्लेस करेंगे सो दैट दिस होल लेंथ कैन बी कवर्ड। कैसे निकालेंगे बताओ, टोटल लेंथ ऑफ द चोजन साइड डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कॉइन, दैट्स इट, दैट इज द आंसर। देखो, number of coins required to be placed one after the other to cover this length, this whole length of the notebook is equals to 12 centimeter upon 2 centimeter. So what is the answer? 6 coins. We will require 6 coins to place one after other to cover this whole this length. Understood? Simple. Chalo, next question. Give 2 examples each for linear, circular and oscillatory motion. Easiest question. एग्जाम्पल्स तो बताओगे, लीनियर मोशन, एनीथिंग विच इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यस। सो मार्च पास्ट लिख लो, कार मूविंग ऑन अ हाईवे, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ब्लेड्स ऑफ फैन, सर्कुलर मोशन, है ना। और क्या हो सकता है, मैरी गो राउंड इज सर्कुलर मोशन, सो दीज आर द 2। उसके अलावा आप हैंड्स ऑफ क्लॉक भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मीन्स द टू एंड फ्रो मोशन, पेंडुलम का मोशन, पेंडुलम, यस। उसके अलावा और कुछ है, वाइब्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन, सो जहां पर भी वाइब्रेशन हो रही है, सो स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, लीनियर मोशन इज फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब एनीथिंग विच यू जस्ट ड्रॉप, थ्रो नहीं, यू जस्ट ड्रॉप इट, तो वो सीधे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ग्राउंड की तरफ जाएगी, सो फ्री फॉल। कार ऑन अ हाईवे, दीज आर द 2 एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन, स्पिनिंग ऑफ टॉप, फेरी व्हील, circular motion. You can write down example of from your choice also, है ना, no need to just follow this. Next, oscillatory motion, pendulum, spool bell and string of guitar. बेटा spool bell में कैसे साउंड आती है, ट्रिंग वाली साउंड आती है, तो वहां पे क्या होता है, जो हैमर होता है वो बेल को कंटिन्यूस ऐसे से मार रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, observe different objects around you. It is easier to express the length of some object in millimeter, some in centimeter and some in meter. Make the list of 3 objects in each category and enter them in table 5.6. Okay, so here are some units which are given and according to these units what objects you can measure, ठीक है। अब बेटा मिलीमीटर, मिलीमीटर का अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी चीज़ की थिकनेस आपको मेजर करनी है। थिकनेस किसकी मेजर कर सकते हो, थिकनेस ऑफ टेबल, थिकनेस ऑफ टेबल, नॉट लेंथ और ब्रेड, थिकनेस ऑफ टेबल, और क्या थिकनेस ऑफ यूटेंसिल, है ना, थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप, बस थिकनेस लिखना, थिकनेस ऑफ कॉइन, यस। चलो नेक्स्ट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्या करो आप, लेंथ और ब्रेड्थ को कवर अप कर लो, किसी भी चीज़ की लेंथ या ब्रेड्थ। लेट्स से चेयर की लेंथ, है ना, चेयर की लेंथ मेजर कर सकते हो, पेंसिल की लेंथ मेजर कर सकते हो, अपने दिस पेंसिल बॉक्स की लेंथ मेजर कर सकते हो, नोटबुक की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, दैट यू कैन राइट। मीटर, एनीथिंग विच इज बियॉन्ड योर 30 सेंटीमीटर स्केल, उसको आप लिख लो मीटर में, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ, मेजरमेंट ऑफ योर ड्रेस, मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड, मेजरमेंट ऑफ योर रूम, yes, measurement of door, these all can be measured with the help of meter. Understood? Chalo, next question. A roller coaster track is made in the shape shown in figure 5.19. A ball starts from point A. Where is point A? Point A and escapes through the point F. यहाँ से बाहर निकल गई. This is the entry point, this is the exit point. Identify the type of motion of the ball on the roller coaster and corresponding to the portion of the track. ओके बेटा, इस ट्रैक में अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको एवरी 2 पॉइंट्स के बीच का मोशन बताना है ना। चलो ए टू बी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, ये तो बहुत सिंपल है ना। अगर हम बी टू सी देखें ना, बी टू सी को क्या बोलेंगे बेटा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बी टू सी को भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिख के आते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज बी के बाद ये पाथ कर्व होना शुरू हो गया है। इसका मतलब B के बाद से बॉल ने इस कर्व लूप में एंट्री स्टार्ट कर दी है ना, तो यहां पर सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो चुका है। इट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सो यू विल राइट दिस सर्कुलर मोशन ओनली। अंडरस्टूड? सो हियर B to C is the circular motion. Why? Reason? What is the reason? Because it is the starting of the circular path. Understood? So it has started the circular motion. Now
सी से डी देन ई, सी डी ई, तो पूरा वन लूप कवर हो गया, सो सर्कुलर मोशन. नाउ ई टू एफ जहां से एग्जिट हो गया, दैट इज द अगेन स्ट्रेट लाइन मोशन. सिंपल. चलो, ए टू बी स्ट्रेट लाइन, बी टू सी सर्कुलर मोशन बिकॉज इट इज द एंट्री, एंड सी डी ई इज सिंपल सर्कुलर मोशन, एंड ई एफ इज द लीनियर मोशन जहां से एग्जिट हो रहा है. अंडरस्टूड. चलो, Tasneem wants to make a meter scale by herself. She considers the following material for it. क्या क्या है? Plywood, paper, cloth, stretchable, rubber and steel. Which of these should she not use and why? She should not use and why. आपको reason भी देना है ना? So this answer going to be long. But first of all find out that what are the materials. बेटा plywood है. अब आपको मीटर स्केल बनाना है तो what do you want? You want something hard, solid और durable होना चाहिए, है ना? So plywood is a good choice. वुड के स्केल होते हैं ना, सो प्लाईवुड यस शी कैन यूज. पेपर, बेटा पेपर में तो पानी गिरा तो खत्म पेपर तो, है ना? सो पेपर इज नॉट अ गुड चॉइस बिकॉज इट कैन बी डैमेज इजीली. क्लॉथ, क्लॉथ खिंच जाता है, इट इज स्ट्रेचेबल, इट इज काइंड ऑफ स्ट्रेचेबल, सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस क्लॉथ मीटर स्केल. ठीक है. नेक्स्ट स्ट्रेचेबल रबर, नो नॉट एट ऑल. स्ट्रेचेबल चीज तो बेटा मीटर स्केल कभी बनी नहीं सकती बिकॉज 1 सेंटीमीटर अगर मेजरमेंट है और खिंच गई तो वो 2 सेंटीमीटर दिखाएगा फिर. यस, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. स्टील अगेन अ वेरी गुड चॉइस. So plywood and steel are the good choice. Rest she should not use. ठीक है. अब आंसर कैसे लिखना है? For making meter scale, Tasneem needs material which are strong, durable, and it should not be water. It should be water resistance also. है ना? तो water resistant भी होना चाहिए. तो she should not consider paper. Paper को consider नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? अपना why भी बताना है ना. Not durable, will be damaged if wet. Next, cloth not durable. नॉट वाटर रेजिस्टेंट, बिट स्ट्रेचेबल, हल्का सा स्ट्रेचेबल भी होता है तो फिर आपकी वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है. नेक्स्ट, रबर, बिकॉज रबर इज स्ट्रेचेबल डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, है ना? अब अलग अलग लोग रबर पकड़ेंगे, अलग अलग फोर्स से पकड़ेंगे, तो कितना फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है. द मेजरमेंट डन बाय इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना? हर पर्सन जो मेजरमेंट करेगा उस स्ट्रेचेबल रबर से सबकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है. दैट्स वाई. अंडरस्टूड. चलो, going for the last question. Think, design and develop a card game on conversion of units of length to play with your friend. Okay, बेटा conversion of unit पे हम क्या गेम खेल सकते हैं, और ऊपर से कार्ड गेम है ये, है ना? इट्स नॉट द वर्बल या फिर कोई से बोलने वाला गेम नहीं, कार्ड गेम के साथ होना चाहिए. तो क्या कर सकते हैं बताओ बेटा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे अगर है कार्ड गेम, सो मेक कार्ड्स विद डिफरेंट यूनिट्स ऑन इट, और उसके फिर करस्पॉन्डिंग डिफरेंट यूनिट और अलग कार्ड बना लो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 सेंटीमीटर का एक कार्ड बना, तो उसके करस्पॉन्डिंग में आप एक 1 मीटर का कार्ड बना लो, है ना? फिर एक 1000 मिलीमीटर वाला कार्ड बना लो. येस, एंड यू कैन मेक 0.1 किलोमीटर कार्ड ऑल्सो. देन यू हैव टू मैच इट, यू हैव टू फाइंड इट्स मैचिंग, समथिंग लाइक दिस. चलो, क्रिएट अ कार्ड विद डिफरेंट लेंथ्स एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी आप ले लो. मेंशन्ड ऑन इट, each card can have length in 1 unit and players must match it to the equivalent in another unit, है ना? एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दिया है. अंडरस्टूड. इसके अलावा अगर कोई और कार्ड गेम इफ यू नो डू कमेंट एंड टेल मी ऑल्सो. ठीक है. चलो, with this we are done with all these NCERT solutions. I hope you were able to comprehend each and every question easily, but still facing any difficulty or any doubt in any of the question from this chapter, do comment, I will revert back. ठीक है. चलो, टेक केयर एंड बाय बाय.